غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی بڑا چیلنج ہے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں ماگلا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے گی۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا UN قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ دنیا میں فرقہ وارانہ اور نسلی بنیاد پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTA کو مراسلے میں وزارت داخلہ نے کہا، غیر قانونی VPN کا استعمال کر کے توہین آمیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ VPN کے ذریعے فحش ویب سائٹس تک رسائی بھی آسان ہو چکی۔ غیر قانونی VPN کا استعمال فوری بند اور قانونی VPN کے استعمال کو فروغ دیا جائے۔ دہشت گرد بھی غیر قانونی VPN کا استعمال کر رہے ہیں۔ VPN کے استعمال سے غیر قانونی ترسیلات کی جا رہی ہیں۔ VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز کے علاوہ دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ VPN استعمال کر کے ہی دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ بلوچستان کے چند علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروسز عارضی طور پر معطل۔ PTA کا کہنا ہے، متعلقہ اداروں کی ہدایت پر امن و امان کے پیش نظر عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدام کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کا استعمال ناجائز قرار دے دیا۔ چیئرمین کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں، حکومت کو اختیار ہے کہ برائی اور اس تک پہنچانے والے اقدامات کا خاتمہ کرے۔ ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپ فوری بند کی جانی چاہیے۔ VPN کا استعمال ناجائز قرار، اسلامی نظریاتی کونسل نے سب کی پریشانی بڑھا دی۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین PP بلاول بھٹو VPN استعمال کر کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور مولانا طاہر اشرفی بھی غیر شرعی VPN استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء بھی ٹویٹ کے لیے VPN کا سہارا لیتے ہیں۔ کفارہ کیا ہوگا؟ سوال اٹھ گئے۔ تحریک کا نقطہ آغاز پورا ملک ہوگا، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے۔ فائنل کال آ گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، جو بھی ظلم ہوگا اس کا سامنا کریں گے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، حکومت نے معلومات تک رسائی کو بند کر رکھا ہے، کسی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم کوئی غلام قوم نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پشاور میں PTI کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس، مرکزی رہنماؤں، MNAs، MPAs، ضلعی صدور اور دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی پر مشاورت۔ پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی، لوگ رضاکارانہ گھروں سے نہ نکلیں۔ لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بند، OPDs رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، لاک ڈاؤن اس سے پہلے لگانا پڑا تو لگائیں گے۔ کل سے تعمیرات کے کاموں پر مکمل پابندی ہوگی۔ تعمیراتی سامان لے جانے والی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی ہوگی۔ اسموگ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیاں بھی بڑھا دی گئیں۔ کالج اور جامعات میں بھی اب آن لائن پڑھائی ہوگی۔ ریسٹورانٹس بھی صرف 4 بجے تک کھلیں گے۔ اس کے بعد صرف ٹیک اوے ہو سکے گا۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا، ملتان کا دوسرا نمبر۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی صورتحال خراب، اسموگ کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ پشاور میں اسموگ کے باعث سینے، گلے اور جلد کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ وزیر اعظم کی اپیل پر ملک کے مختلف شہروں میں باران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ ICC نے بھارت سے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ جانے کی تحریری وجوہات مانگی۔ ذرائع کا کہنا ہے، بھارتی کرکٹ بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات بتانا ہوں گی۔ تحریری وجوہات جائز نہ ہوئی تو ICC بھارت کو پاکستان آنے کا کہے گا۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں نئی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے ICC کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا۔
भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी एतराज। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि भारत के मुतालबे पर आईसीसी ने ट्रॉफी आजाद कश्मीर न ले जाने का कह दिया। जरा पीसीबी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत का आईसीसी ट्रॉफी टूर पर एतराज नाजायज है। ट्रॉफी का शेड्यूल और रूट आईसीसी का मंजूर करदा है। आईसीसी खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज कर सकता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं हुआ। इंडिया 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके कैसे ले गया था। ट्रॉफी कल स्कर्दू से सफर का आगाज करेगी। रूट में हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद भी शामिल हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 5 रोजा मुज़ाकरात खत्म। तरक्याती बजट में कटौती न करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा बढ़ाने पर आईएमएफ राजी। हुकूमत ने सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया। ज़रई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी। तमाम सूबे ज़रई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगाएंगे। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। आईएमएफ का कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल का मुतालबा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की। आईएमएफ के साथ आइंदा इक्तिसादी जायजा मार्च में होगा। डस्का पुलिस ने बहू का कत्ल करने वाली सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया। 7 माह की हामिला जारा की लाश के टुकड़े नहर में फेंकने वाला नंद का बेटा और एक रिश्तेदार नवीद भी पकड़ा गया। कातिल सास सोगरा ने बहू को कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने का तरीका इंडियन फिल्मों से सीखा। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिमान ने सब कुछ उगल दिया। जारा को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया गया। जब सजदे में गई तो उसे दबोचा गया, फिर मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। दौराने वारदात जारा का 2 साल का बेटा कमरे में ही था। नंद और उसके बेटे अब्दुल्ला ने जारा का सर धड़ से जुदा किया और शनाख्त मस्त करने के लिए चूल्हे पर रखकर जला दिया। नवीद को लाश टुकड़े करने और नहर में फेंकने के 15,000 रुपए मिले। कत्ल की वजह सास बहू की रंजिश थी, जिसकी आग नंद ने इतनी भड़काई वो भूल गए कि जारा 7 माह की हामला है। जहन नशीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि ये आईनी बेंच में चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा था, आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुना जाएगा। 18 नवंबर को आजाद उम्मीदवारों को सियासी पार्टी में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बानी पीटीआई जो भी कॉल देता है वो मिस कॉल है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की नॉर्थ कराची में गुफ्तगू। केएमसी के ऑपरेशन से मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध ने कहा, किसी के साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं होने देंगे। दुकानदारों को यकीन दिलाता हूँ आपका रोजगार नहीं छीना जाएगा। आपका मसला हल ना हो रहा हो तो गवर्नर हाउस आकर घंटी बजा सकते हैं। गवर्नर सिंध से ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा, असेंबली में आवाम की भरपूर तर्जुमानी करें और मसाइल को उजागर करें। विफाक से जो ताउन दरकार होगा उसमें मदद करूंगा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, डाका डालकर हमारा मैंडेट छीना गया। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके नताइज तब्दील किए गए। इस बार अपना हक छीनने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। शारा फैसल बंद करेंगे और वजीर आला हाउस का घेराव भी करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जमात इस्लामी बड़े दिल के साथ शिकस्त तस्लीम करे और अपनी कारकर्दगी का जायजा ले। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपी कामयाब। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। कहा, आवाम ने फिर नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। स्वात और चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी कालाम में 2 रोज से बर्फबारी। माहूडंड में बर्फानी तोदा गिरने से कालाम रोड बंद हो गया। 100 से जायद सयाह और मकामी अफराद फंस गए।
स्वात में सयाहों की आमद बढ़ गई। चित्राल में भी 2 रोज से बारिश और मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। करीमाबाद, तोरकहू, मोरकहू, शंदूर और यारकून के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का बाकू में वजारती डायलॉग से खिताब। कहा पाकिस्तान का कार्बन इखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत के फरोग के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की वापसी पर आपको स्मॉग पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे ज़रई जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी न बनाई जाए। स्मॉग के तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा साल जून तक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। स्मॉग के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। हाई कोर्ट ने बीजिंग का मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत कर दी। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। हसास इदारों के दफातर पर हमले की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। ISI इंसदाद दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द नूर वली महसूद ग्रुप से राब्ते में थे। मुलजिमान से भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर स्वात में भी ऑपरेशन किया गया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का केस। चश्मदीद गवाहान ने गिरफ्तार मरकजी मुलजिम जावेद उर्फ समीर को शनाख्त कर लिया। रशियाई इकोनॉमिक जोन की मुश्किलात से सरमायाकार परेशान। चीन की सेंचुरी स्टील ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में प्रोजेक्ट बंद करने से आगाह कर दिया। 18 नकाती शिकवे कर दिए। खत में कहा रशिया का इकोनॉमिक जोन की जमीन इतनी महंगी कर दी गई कि प्रोजेक्ट लगाना मुमकिन नहीं रहा। फाटा और पाटा में लगी स्टील मिल्स पाकिस्तान में स्टील मिल्स के कारोबार को मुतासर कर रही हैं। रशिया का इकोनॉमिक जोन में बिजली का बहरान और नेपरा के पास मामलात में ताखीर संगीन मसला है। रशिया का इकोनॉमिक जोन में बिजली के लिए शमसी तवानाई का प्लांट लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिरी खत लिख रहे हैं, हालात बेहतर ना हुए तो सेंचुरी स्टील का प्लांट उखाड़ना शुरू कर देंगे। काबीना की निजकारी कमेटी ने PIA की निजकारी की बोली मुस्तरद कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फरोख्त करने की तजवीज पर भी गौर करने का फैसला। एलामिया में कहा गया काबीना ने 10 अरब रुपए की बोली को गैर हकीकी करार देकर मुस्तरद किया। PIA असासों मालियाती सूरत हाल पर एविएशन डिवीजन ने दुरुस्त अंदाजा लगाया। PIA रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए मालियत के अंदाजे की खुसूसी कमेटी कायम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा पाक तुर्की ताल्लुकात पायदार शरकतदारी में बदल रहे हैं। 23 अक्टूबर को अंकारा में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वजीर दाखिला तुर्की ने कहा पाकिस्तान बिरादर मुल्क है, जल्द इस्लामाबाद का दौरा करूंगा। We hope to double that by 2030 with another 1 million jobs. And I want to work through the British Council, through the programs that we do here in Pakistan, to enable Pakistan to get a key part of that. बरतानवी डेप्यूटी हाई कमीशन कराची में शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब। वजीर आला सिंध और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था पाकिस्तान के साथ सिफारती, तिजारती और कल्चरल ताल्लुकात भी आगे बढ़ रहे हैं। ये साल बरतानिया और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। तिजारत को 50 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला फौजी एजाज। बहरीन के नायब फरमारवा शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। एजाज फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए शानदार काविशों के एतराफ में दिया गया।
बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की शिरकत पर बहरीन नायब फरमारवा का इजहार तशक्कुर। ISPR ने बताया एयर चीफ ने अमरीकी एयर फोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर और बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ से अलग अलग मुलाकातें। ईरान में हिजाब की मुखालिफ खवातीन का नफ्सियाती इलाज होगा। ईरानी हुकूमत ने हिजाब से मुनहरिफ खवातीन के लिए क्लिनिक खोलने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत की जानिब से तेहरान में नए क्लिनिक के लिए मनसूबा बंदी का ऐलान सामने आया है। इस मंसूबे की निगरानी करने वाली महरी तलीबी का कहना है ये ईरान का पहला काउंसलिंग क्लिनिक है जो बेहिजाब खवातीन का साइंसी और नफ्सियाती तरीक़ाकार से इलाज करेगा। में 24 घंटे में 24 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में घर पर बमबारी में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुआवजे के बाइस ग़िज़ाई किल्लत। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलाइब का अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर जापान, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड समेत 10 ममालिक ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बमबारी, 4 पैरामेडिक्स समेत 6 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी। अट्ठावन साल के माइक टायसन फिर रिंग में उतरने को तैयार। फेस ऑफ में हरीफ जैक पॉल को थप्पड़ जड़ दिया। 8 राउंड पर मुश्तमिल मुकाबला कल होगा। हर राउंड का दौरानिया 2 मिनट होगा। मुकाबला नेटफ्लिक्स के 28 करोड़ सब्सक्राइबर्स बगैर इजाफी फीस के देख सकेंगे। टायसन 2005 में केविन मैकब्राइड से शिकस्त के बाद रिटायर हो गए थे। टायसन ने करियर में 50 मुकाबले जीते, 44 बार हरीफों को नॉकआउट किया। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपरमून देखा जा सकेगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि सुपरमून रात 2:28 पर देखा जाएगा। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। शौक का कोई मोल नहीं। बलोचिस्तान की फराह यूसुफ ने लड़कों का रूप धार कर खेलों में अपनी पहचान बनाई। 24 साल की उम्र में 10 मुख्तलिफ खेलों में कई इनामात अपने नाम किए। फराह 2 किताबों की मुसन्निफ भी है। और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने ननकाना साहिब में मजहबी रसूमात अदा की। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि आज दुनिया भर की सिख कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी का दिन है। सिक्योरिटी और दीगर बेहतरीन इंतजाम पर जिला इंतजामिया का किरदार लायक तहसीन है।